Okay, so for constructions, you will require certain instruments, and I will write the names over here. Number one, you require pencils, okay, preferably mechanical, mechanical pencils. It can be 0.5 or 0.7 maybe. मैकेनिकल पेंसिल देखा है, पेन पेंसिल होता Oh, okay. है. Why I'm saying mechanical is because they are very sharp. You don't need to sharpen it, and the construction will not be smudged with that. Very sharp, very fine, and you can draw fine lines and the very the lines which are very light. You can draw them easily with mechanical pencils. ठीक है. Uh, you require a compass, preferably Maped brand. ठीक है. I'll show you the model. I'll show you the model of Maped brand. Maped compass. If you don't have, buy it, because it's really important to use this kind of compass. Very Amazon, they are selling for very high price. I don't know why. This one I'm talking about. Sir, I think I have this. The same model. Not the same, but something. I have this type of thing. I'll see once. I'll just see. Yeah. Because why the same model? I'll tell you. See this one. A compass, preferably Maped brand, and it looks like this, in which the pencil is attached to the body of the compass. You see that? इसमें क्या होता है पता है? तुम्हारा जो नॉर्मल कंपास होता है उसमें एक यहाँ पे स्क्रू होता है जिससे हम पेंसिल अटैच कर सकते हैं, छोटी वाली. एक तो छोटी पेंसिल मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती है. दूसरा, इफ यू डोंट हैव स्मॉल पेंसिल देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एनी आर्क और सर्कल. तीसरा, वो जो पेंसिल है वो शार्पन करनी पड़ती है, और उससे भी जो सर्कल या आर्क आता है वो बहुत डार्क आता है. इसमें ऑलरेडी मैकेनिकल पेंसिल है जिससे तुम्हारी आर्क एकदम लाइट आएगी जो हमें चाहिए. और एक चीज़ ये कभी लूज नहीं होता, बिकॉज स्क्रू है नहीं तो लूज होगा नहीं. लूज नहीं होगा तो तुम इजीली हैंडल कर सकते हो. So this is maybe, I don't know, 150 or 200 rupees or something, available in stationery. So you have to buy the same model, ठीक है? And this will be useful for coming years also. ठीक Sir, है? I'll send you the image that I like. Image Which of you have. this. Okay, no Yeah. problem. ठीक है. So you need this compass, you need pencils, you need erasers, non-dust wala, but don't use the erasers. You need protractor. Protractor is to measure the angles. एंगल मेजर करने के लिए. ठीक है. यू नीड प्रोट्रैक्टर, यू नीड अ स्केल. ठीक है. स्केल यूज प्लास्टिक स्केल, ट्रांसपेरेंट, 30 सेंटीमीटर बड़ा होना. ठीक है. यू नीड दिस मच टू डू कंस्ट्रक्शन. अगर ये सब सामान है तुम्हारे पास, कंस्ट्रक्शन आराम से कर लोगे. अब तुम्हें बेसिक क्या क्या सीखना है? एंगल बनाना सीखना है, विच इज इक्वल टू अ गिवन एंगल. बाइसेक्टर बनाना सीखना है, और स्टैंडर्ड एंगल्स बनाने सीखना है.
ठीक है, मैं सारे चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है. So let us first understand how to draw an angle. Suppose this is the angle, sample angle given to me. ठीक है, जिसका नाम है AOB. So they are saying construct an angle which is equal to angle AOB. Don't do anything, don't draw anything, just see मैं क्या कर रहा हूँ और इसको याद रखना. So they are saying that construct an angle which is equal in measure to angle AOB. ठीक है. So what you do is you first draw a horizontal line. Mark, you can say vertex and name it as, let's say, Q. ठीक है. Now put the point of compass on point O and the pencil at somewhere over here. Point of compass O पे और pencil OB पे middle में. ठीक है. And then draw an arc like this. Compass से एक arc बनानी. You know how to draw an arc. ठीक है. सेम मेजर लेके Q पे कंपास का पॉइंट रख के और पेंसिल को उतना ही रेडियस, मतलब जो पहले था आर्क का रेडियस, उतना ही रेडियस लेके यहां भी एक आर्क बनानी है तुम्हें, थोड़ी लंबी आर्क बनाओ. ठीक है. नाउ पुट द पॉइंट ऑफ कंपास ओवर हियर एट दिस पॉइंट. लेट्स नेम दिस पॉइंट एज x. और यहाँ पे जहां पे ये आर्क एंड हुई है OA पे, जहां पे ये आर्क टच कर रही है, उसको पॉइंट y नाम दे दो. x पे कंपास का पॉइंट, y पे कंपास की पेंसिल रखो and take a measurement and now put the point of compass on, let's say, C पे, यहाँ पे रखो. और ये जो आर्क दिख रही है ना तुम्हें, उस पे एक सेम मेजरमेंट, जितना XY का मेजरमेंट था उतना ही मेजरमेंट C से लेके एक कट बना दो. ठीक है. एंड नेम दिस एज D. अब Q और D को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो. ठीक है. इसको नाम दे दो PQR. ठीक है. So what you have done, you have constructed an angle which is exactly equal to angle AOB. So angle AOB is equal to angle PQR. So this is how you draw an angle which is exactly equal to the given angle. ठीक है. समझ में आया? ये इजी था, बहुत इजी था. ठीक है. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट इज नंबर 2, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल. तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं? सपोज एक एंगल है, यू नो द टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट? दिस इज एन एक्यूट एंगल. इसको अगर बाइसेक्ट करना है, पहले इसको नाम दे दो x, y, z. ठीक है. अब कंपास का पॉइंट y पे रखो और यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक रैंडम मेजरमेंट ले लो y z के ऊपर और एक आर्क ड्रॉ करो. आर्क ड्रॉ किया? एक मिनट. आर्क ड्रॉ किया. अब इस आर्क को नाम दे दो P डैश, Q डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो. ठीक है. अब कंपास का पॉइंट P डैश के ऊपर रखो और P डैश Q डैश से के ऊपर मोर देन हाफ डिस्टेंस पे कंपास की पेंसिल रखो. मतलब अगर कंपास का पॉइंट यहाँ पे है तो पेंसिल यहाँ पे होनी चाहिए मोर देन हाफ डिस्टेंस के ऊपर. कंपास का पॉइंट यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे. मोर देन हाफ समझता है ना? ग्रेटर देन हाफ. P डैश Q डैश से के हाफ से थोड़ा ज्यादा और फुल से थोड़ा कम. ठीक है. अब तुम्हें क्या करना है, P डैश पे ही कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे करके, और उतना ही मेजर चेंज नहीं करना है, रेडियस उतनी ही रखनी है. Q डैश पे कंपास का पॉइंट रखना है और पेंसिल से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है. मे बी नॉट सो एक्यूरेट बट स्टिल आई कैन. यस. ठीक है. ऐसे दो आर्क बनेंगे. ठीक है. अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो y के साथ.
और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो आगे और इसको नाम दे दो लेट्स से एक्स वाई जेड एस। ठीक है, सो ये जो वाई एस है वो बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल एक्स वाई एस इज इक्वल टू एंगल जेड वाई एस। Since SY is an angle bisector of angle XYZ. So we just constructed an angle bisector. So for you the challenge is you need to remember all the steps which I am explaining you. There are two guides available to you. एक तो टेक्स्ट बुक में सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम बाद में भी यू कैन कम बैक इन रेफरेंस के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड इज टू ड्रॉ an angle of standard measurement, to draw an angle of standard measurement using a protractor. To draw an angle of standard measurement using a protractor. Oh, I'm sorry. Without using a protractor. I'm sorry. Without using a protractor, only with a compass. To draw an angle of standard measurement without using a protractor or only with a compass. Right? The first angle is 30 degree. I'm sorry, 60 degree. 30 degree comes later. 60 degree. 60 degree के लिए the first thing you will do is draw a line. इसको कुछ नाम दे दो, let's say O P. O पे कंपास का पॉइंट रखो, पेंसिल कहीं पे इस OP के ऊपर रखो and then draw an arc like this. क्या किया तुमने, एक लाइन ड्रॉ किया OP, O पे कंपास का पॉइंट रखा, एक रैंडम एक रेडियस लिया और उससे एक आर्क ड्रॉ किया such that it touches OP and then goes up. ठीक है, now the radius is not to be changed, so keep the radius, keep the measurement of the compass as it is. Put the point of the compass over here at this point, name this point as let's say R. ठीक है, आर्क के ऊपर कंपास का पॉइंट रखो एंड उतना ही रेडियस जितने से तुमने आर्क बनाया है उतने ही रेडियस से यहाँ पे कट मार दो। ठीक है, अब O से इस कट के ऊपर ज्वाइन करो। ठीक है, ये हो गया पॉइंट S, राइट, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो Q। सो एंगल QOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल QOP 60 डिग्री है। Without using protractor, you have constructed this angle of 60 degree. Now take a protractor and measure this angle. You will find it exactly to be of 60 degrees, exactly. ठीक है, so this was 60 degree. The next angle which you have to draw is 30 degree. Number 2, 30 degree. So 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री तो पहले लगेगा तुम्हें। विदाउट 60 डिग्री यू कैन नॉट ड्रॉ 30 डिग्री। तो 60 डिग्री बनाना तो आता है तुमको, अभी बनाया ऊपर। 60 डिग्री बना दिया। नाउ कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट R। कंपास का पॉइंट R पे रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, सपोज यहां तक, एंड एक आर्क लगाओ यहाँ पे
और पॉइंट एस पे पॉइंट रखो कंपास का और इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करो यहाँ पे, और ओ से ये दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से पास होती हुई एक लाइन बना दो। इसको नाम दे सकते हो तुम ओ एक्स। नाउ अगर ये 60 डिग्री था, मैंने उसको बाइसेक्ट कर दिया, तो आई नो दैट दिस इज 30 डिग्री। एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। So can you just tell again? फ्रॉम Can you just वेयर? tell? So like do we need to draw the arc from like S? Yeah, so from R you will take a measure more than half measure Yes. of RS. Yes. RS जितना पूरा नहीं लेना है, RS से थोड़ा कम और हाफ से थोड़ा ज़्यादा, RS के Yes. हाफ से थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट किया है वहाँ तक का मेजर लेना है, ठीक है। और एक आर्क ड्रॉ करनी है इन बिटवीन दी एंगल, और उतना ही मेजर से एस के ऊपर कंपास का पॉइंट रख के उसको कट करना है आर्क को, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ के साथ ज्वाइन करना है। Okay. सो व्हाट यू गेट इज द बाइसेक्टर। Okay. फाइन, अंडरस्टूड? Yes. Okay. ठीक है। सो दिस इज 30 डिग्री। Now just out of curiosity, if I ask you that how to draw 15 degrees, can you tell me? So we bisect the 30 degree as well. Very good, very good. So this is also your homework. ये जितना भी चीजें बता रहा हूँ सब तुम्हें ड्रॉ करना एज होमवर्क। 15 डिग्री एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो 60 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट इज 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री के लिए एक लाइन ड्रॉ करो, ओ नाम दे दो इसको, यहाँ पे पी नाम दे दो, रे ओ पी। एक कंपास के पॉइंट को ओ पे रख के यहाँ तक का मेजर ले लो और एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो। ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, लॉन्ग आर्क। जितने रेडियस का आर्क ड्रॉ किया है उतने ही रेडियस का तुम्हें आर्क पे कट लगाना है। मतलब कंपास का पॉइंट अब यहाँ पे लगाओ एंड कट मारते जाओ। यहाँ पे एक कट मार दो, यहाँ पे एक कट मार दो, एंड देन इसको क्यू नाम दे दो, ठीक है। सो दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू 120 डिग्री। तुमने क्या किया, 60 के दो एंगल बना दिए। एक आर्क जो ये सिंगल आर्क है ना, दिस रिप्रेजेंट्स 60 डिग्री वाला एंगल, बट उसी के ऊपर कंपास रख के और एक इक्वल आर्क बना दिया, तो दिस आर्क रिप्रेजेंट्स 120 डिग्री। दिस इज हाउ यू ड्रॉ 120 डिग्री। इजी? ओके। Yes. Okay, next I'll teach you how to draw 90 degree. So 15 degree, how was that, sir? Like we need to like how do you do that? 15 degree के लिए you need to draw a bisector over here. Yeah. So do we take here the arc of the 30 degree and the arc of from angle R? You know how to draw bisector, right? Yeah. Yes. तो you have to bisect 30 degree. Okay. 30 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे तो ये 15 डिग्री मिलेगा। Okay. रिकॉर्डिंग चल। So can I say how to make 90 degree? या प्लीज टेल मी। So for that, first we have to make a 60 degree angle and 120 degree angle. Yeah, so we have to draw an arc like this, 60 degree, 120 degree, okay. Yeah, and now we have to bisect 60 degree and 120, like Yeah, from the middle. you are right. So what I'll do is, for reference, I will draw a dotted line here.
ठीक है. Now I will take more than half distance of this. Let me name the points. This is O, P, Q, R. QR का जो डिस्टेंस है, Q पे कंपास रख के QR का मोर देन हाफ डिस्टेंस रख के एक आर्क यहाँ पे बनानी है, और R पे रख के कंपास का पॉइंट इसके ऊपर और एक आर्क ड्रॉ करनी है, एंड देन आई हैव टू join O with the point of intersection of this arc. So this angle SOP जो हमें मिलेगा वो 90 डिग्री होगा. Did you understand? सबसे पहले ये जो मैंने OP रे ऑफ लाइट रेल बनाया था मैंने, उसके ऊपर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया लंबा वाला. फिर जहां से आर्क शुरू होता है इस पॉइंट से मैंने कंपास का पॉइंट रख के जितना रेडियस है उतना ही आर्क यहाँ पे मार्क किया, और फिर इस पे कंपास का पॉइंट रख के सेम रेडियस जितना आर्क यहाँ पे मार्क किया, Q से R. और Q से R वाला जो स्पेस है उसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, और मैंने O से उस जो दो मेरे पास आर्क थी उसको ज्वाइन कर दिया, OS आई गॉट, और एंगल SOP 90 डिग्री एंगल. समझ में आया 90 डिग्री कैसे बना? Okay, now you tell me, how will I make 45 degree? Sir, you'll bisect 90 degree. Yes. Yeah. So this is one more homework. Sir, so for we'll you. draw the arc from Q and Actually, arc 90. is already drawn. If you see, Yeah, I'll just show you new two arc. points, X and Y. Do you see these 2 points? Yes. This is X and this is Y. X और Y के बीच में more than half distance लेके you can draw a bisector, है ना? And you can draw 45 degrees. So just to take this further, if this is suppose 90 and you draw an arc and you take more than half distance and you draw, basically you draw 45 degrees like this. This is how 45 degree look like. Which angle? Angle, suppose this is angle ABC, then angle DBC will be 45 degree. Angle ABC is 90 and BD is the bisector of angle ABC. So angle DBC will be 45. ठीक है, ये समझ में आया? Now ये तो 45 है, but what I want to teach you is 135 degrees. Any idea anyone? 135 degree कैसे बनाते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि 135 और 45 के बीच में रिलेशनशिप क्या है? What is the relationship between 135 and 45? Have you ever wondered that how much is 135 plus 45? 180. Yes. So what you do to make 135 is very interesting. You just extend this line on the left hand side. CB को वो साइड एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे नाम दे दो लेट्स से P. So 45 का जो सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, that is 135 डिग्री ऑटोमेटिकली. समझ में आया कैसे बना है 135? You have to draw 45, बट फिर उसको दूसरी साइड एक्सटेंड कर देना तो वो 135 हो जाएगा. So angle PBD is equal to 135 degrees. Can anyone tell me how to draw 22.5 degrees? (22.5 degrees? Anyone? 45 को हाफ कर दो, 45 का एंगल बाइसेक्टर बना दो, and you will get this one, this angle over here.
this is the bisector of 45 degree, 22.5 degrees angle, let's say QBC. So 22.5 degree भी try करो. ठीक है? So these are your tasks for today. Sir, so you need to draw all this, right? All of the angles, Yes. right? Let me see what is your exercise telling you to do. If you just do the exercise, then it will be easy enough. Yeah, I think just draw your, just do your exercise. 18A. 18A homework है आज का. ठीक है? Fair? Start doing it immediately and send it to me then. Yes. So we have English class right now. Yeah, online, right? Yeah. Yeah, so you can do it after the lecture and send it to me. Send it to me today only. Okay, bye. Bye, sir. Bye.